آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں سید تنصیر زیدی۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پورے پاکستان میں ہیں پہلے سیلاب نے تباہی مچائی۔ جہاں سیلاب متاثرہ علاقے موجود ہیں وہاں پر اب وبائی امراض پھوٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہر دن شیرخوار بچے دم توڑ رہے ہیں۔ اس پر بات ہوگی اسی بلیٹن میں۔ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہرام خالق اور میں ہوں سونیا شیخ۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ نے چاہی بلیٹن کا آغاز کریں گے، اور بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات آج ہونے والی سماعت کے حوالے سے۔ تو ناظرین، شہباز گل کو آج 36 روز بعد ضمانت مل گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پچھلی حکومت نے بھی بغاوت کے مقدمات بنائے ہیں اور موجودہ حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے۔ جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو غدار کہہ دیتا ہے۔ مسلح افواج اتنی کمزور نہیں کہ کسی کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے ان پر اثر ہو۔ اسلام آباد سے حسین احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ بغاوت پر اکسانے کا الزام، شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کی۔ دوران سماعت شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر نے شہباز گل کی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ پڑھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بدنیتی اور سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا۔ شہباز گل حکومت کے بہت نقاد تھے۔ شہباز گل کی گفتگو میں مسلح افواج سے متعلق کہیں نامناسب الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ چیف جسٹس نے وکیل کو سیاسی بات کرنے سے روکتے ہوئے قانونی دلائل دینے کی ہدایت کی اور ریمارکس دیے کہ شہباز گل کا بیان غیر ذمہ دارانہ، غیر مناسب اور تحقیر تھا، جس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالنی چاہیے۔ چیف جسٹس نے اسپیشل پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا تفتیش میں سامنے آیا کہ شہباز گل نے کسی فوجی سے بغاوت کے لیے رابطہ کیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ شہباز گل نے بات ایک چینل پر کہی تھی، وہ چینل ملک کا ہر دوسرا شہری دیکھ رہا تھا۔ مسلح افواج میں بھی چینل دیکھا جاتا ہے۔ یہ بغاوت پر اکسانے کا الزام ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ شہباز گل نے کسی ایک کو کہا ہو کہ بغاوت کرو تو بتائیں، قانون میں جو لکھا ہے اس کے مطابق بتائیں کیسے یہ الزام بنتا ہے۔ جب تک ٹھوس مواد نہ ہو کسی کو ضمانت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ کل کو وہی شخص بے قصور نکلا تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کارروائی ضرور کریں لیکن ٹھوس مواد تو سامنے لائیں۔ عدالت نے فریقین کی دلائل سننے کے بعد شہباز گل کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ ناظرین، اب بات کریں گے سیلابی صورتحال کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب سے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سوات، ٹانک، ڈی آئی خان اور اپر دیر کا حلیہ ہی بدل چکا ہے۔ سیاحی مقامات جانے والے زمینی رابطے سیلاب کے پانی میں گم ہو گئے ہیں تو متعدد پل سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ تباہ شدہ مکانات کے مکین بحالی کے لیے تاحال حکومتی امداد کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انفراسٹرکچر کی مکمل بحالی کے لیے کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ تو سیلابی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، سیلاب نے متعدد علاقے زیر آب کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب سے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ سوات، ٹانک، ڈی آئی خان اور دیر اپر میں بڑے پیمانے پر سڑکیں اور پل تباہ ہوئے۔ سوات کے سیاحتی مقام کالام، بحرین اور مدین میں سیلاب کے باعث سڑکوں اور پلوں کو بری طرح نقصان پہنچا۔ بحرین سے کالام تک سڑک 19 مقامات پر سیلاب میں بہہ گئی تھی، جسے ٹریفک کے لیے بحال تو کر دیا گیا، مگر اس شاہراہ کو بنانے پر شاید ہفتے نہیں مہینے لگیں گے۔ سوات کے دیگر علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے یہاں پر، یہ جو محلہ ہے، اس محلے میں تقریباً 6، 7، 8 اس گھر کے ساتھ جو ہے نا 9، 10 گھریں تھے۔ یہ دریا اس سائڈ پہ تھا نا، یہ ایک دم اس سائڈ پر آیا اور یہاں پر جو گھریں تھے وہ مکمل سب کچھ نکل گیا ہے۔ تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، بس سارے گھر تباہ ہو گیا ہے یار۔ ہم ادھر یہ ہوٹل میں رہ رہے ہیں ہم۔ دیر بالا میں بھی متعدد پل سیلاب کی نظر ہو گئے۔ کمراٹ جانے والے پل کو تو عارضی طور پر بحال کر دیا گیا، مگر دیر کوہستان جانے والے پل کی تعمیر تاحال شروع نہ ہو سکی۔ 1 مہینے کے بعد برف ہونے والا ہے۔ یہ 1 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے اندر ہمارا مدد نہیں کیا گھر کا، تو اور کوئی کھانا بانا کا بندوبست نہیں کیا، تو پھر ہمارا یہاں کوئی بیٹھنے کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ٹانک اور ڈی اے خان میں بھی درجنوں دیہات زیر آب آئے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دونوں اضلاع میں تباہ شدہ مکانات کے مکین بحالی کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ چرسد اور نوشہرہ کے متاثرہ علاقوں میں کھیلوں کے میدان، سکول، اسپتال، مکانات اور پینے کے پانی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لوگ گھروں کو لوٹ چکے ہیں، مگر وہ نارمل زندگی گزارنے سے اب بھی کوسوں دور ہیں۔ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔
اسی طرح خیبر پختونخوا میں سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مکانات کو نقصان پہنچا ہے. سیلاب کے باعث کتنے مکان مکمل تباہ ہوئے اور کتنے مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، جاننے کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ 92 نیوز ذیشان کاخیل سے. ذیشان اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، خیبر پختونخوا میں سیلاب کے باعث 91,000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جس میں 33,000 گھروں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے. زیادہ تر جو نقصانات ہیں وہ ڈی خان اور ٹانگ میں ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چارسدہ اور نوشہرہ میں بھی گھروں کو کافی نقصان پہنچا ہے. اس وقت میرے ساتھ خیبر پختونخوا کے صوبائی ترجمان تیمور خان موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ گھر تباہ ہونے والوں کو کیا معاوضہ دیا جا رہا ہے، کتنا دیا جا رہا ہے، اور جو جاباک ہوئے ہیں ان کو کتنا معاوضہ دیا جا رہا ہے. اس مونسون میں اگر کوئی جان کسی بندے کا ورثہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ورثہ کو 3 لاکھ کی جگہ 8 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جبکہ گھروں میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے لیے ریپڈ نیڈ اسسمنٹ شروع ہو چکی ہے اور صوبائی حکومت نے ایک ایپ بھی لانچ کی ہے. اس ایپ کے ذریعے جتنی بھی رپورٹنگ ہوگی وہ جلد از جلد وہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل نیڈ اسسمنٹس کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو فوری اور شفافیت کے ساتھ ان کو امداد دی جا سکے. ریلیف کمپنسیشن 2019 میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد جو گھر جو مکمل طور پہ گھر تباہ ہو جائیں یا جن کو نقصان ہوا ہو اس کو تقریباً 4 لاکھ روپے تک دیے جائیں گے، جو کہ پہلے 1 لاکھ روپے تھے، اب وہ اس کو بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دیے گئے ہیں. جی بالکل، نقصان پہنچنے کی صورت میں جو ہے اس کی ابتدائی جو سروے ہے وہ اس پر کام کیا جا رہا ہے، جبکہ جو متاثرین ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے اعلان کیا ہے اور ان کو جلد از جلد جو ہے وہ یہ رقوم دی جائے تاکہ وہ اپنے لیے سر چھپانے کی جگہ بنا سکے. جی ذیشان آپ کا شکریہ. ناظرین، خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع کی صورتحال، امدادی اور بحالی کی سرگرمیوں کے حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے سے موجود ہیں صوبائی وزیر محنت شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت صاحب، آپ کے وقت کے بہت مشکور ہیں. اس وقت پشاور کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، آپ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ بتائے گا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟ جو متاثرین ہیں ان تک امداد پہنچانے کا کیا پروسیجر ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں جی، سیلاب یا اس طرح کے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں نا، اس کا مین جو پلیز یہ آواز بند کر رہے ہیں، مجھے دوبارہ آواز سنائی دی جا رہی ہے. جی فرمائیے گا. ہاں، تو دیکھیں جب ریلیف ایکٹیویٹیز شروع ہوئی تو اس میں بھرپور حصہ لیا خیبر پختونخوا حکومت، اور میرے خیال سے بہت سارے اداروں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اور کیونکہ ہمارے سب سے جو مشکل علاقے ہیں وہ پہاڑی علاقے ہیں، جہاں تک رسائی کافی مشکل ہو گئی تھی. ہماری رابطہ سڑکیں ختم ہو چکی تھی، پل ختم ہو چکے تھے. اس طرح ڈی خان ٹانگ کے جو ایریاز ہیں وہاں پانی کھڑا تھا. تو ان مشکلات کے باوجود اور محدود وسائل کے باوجود پوری کوشش کی گئی، اور اس میں وزیر اعلیٰ محمود خان خود انوالو رہے، خود نگرانی کرتے رہے، اور 6-7 دن تک تو وہ بالکل اپنے دفتر ہی نہیں آئے اور سارا دن لوگوں کے ساتھ رہے. تو یہ ایک جو ریلیف ایکٹیویٹیز تھی وہ کافی حد تک کامیابی کے ساتھ رہی. لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے جو سب سے زیادہ مشکل، وہ ہے ری ایبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن کا. تو اس کے لیے ایک تو جو ریپڈ نیڈ اسسمنٹ ہوتی ہے RNA جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر DNA جو ڈیٹیل نیڈ اسسمنٹ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر تباہ ہوئے ہیں، کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں اور کون سے ہوئے ہیں، تو تاکہ جو متاثرین ہیں ان تک وہ رقم پہنچی جائے. تو جس طرح آپ کی رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ معاوضوں میں اضافہ کیا گیا، پہلے 3 لاکھ دیے جاتے تھے جہاں بھاگ کو، اب وہ 8 لاکھ کر دیے گئے ہیں. اسی طرح گھر کی جو ہے نا 1 لاکھ دیے جاتے تھے وہ 4 لاکھ کر دیے، تاکہ لوگ کچھ نہ کچھ طور پہ وہ ہو جائیں، اپنے لیے گھروں میں واپس جا سکیں، گھروں میں جو ان کے ڈیمیج ہوئے وہ اس کو ٹھیک کر سکیں. تو ایک مشکل مرحلہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا لوگوں کی آپ نے باتیں سنائی ہیں، میں نے بھی سنی. دیکھیں، جب کوئی اپنے گھر میں سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جب اس کو آپ اس سے چھت ہٹا لیں، آپ اس کو کچھ بھی دے دیں، آپ اس کو بہترین سے بہترین ٹینٹ لا کے دے دیں، تو وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. وہ وہی کہے گا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو وہ تو لوگوں کی جو رداد ہے وہ تو بالکل ہے، لیکن گورنمنٹ سیریسلی لگی ہوئی ہے کہ ان کو فوری طور پہ بحال کیا جائے. تو اس کے لیے ہمارے جو PDWP ہے اس میں کافی پروجیکٹس منظور ہو چکے ہیں. ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈونرز کانفرنس بلائی جائے، اس میں بھی کام ہو رہا ہے. جو اس وقت ہمارے اکاؤنٹس کھلے ہیں اس میں بھی لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں.
तो वो भी हमारे पास एक काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इमदाद भी दे रही है और मदद के लिए आगे आई है। अच्छा शौकत साहब, ये भी कहिएगा जिस तरह आपने कहा कि रिहेबिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के जो मामलात हैं उन पर गौर किया जा रहा है, तो ये बताएगा अगर तखमीना लगाया जाए तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर जो तबाही मची हुई है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस सामान की है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि रिहेबिलिटेशन का काम और रिकन्स्ट्रक्शन का काम जल्दी हो सके? देखिए आपको पता है कि तकरीबन ये 1.25 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है और उसमें यानी कि सारी 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो 100 अरब रुपए इकट्ठे करना और गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं वो, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब तक आप असेसमेंट नहीं करें तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसमें NDMA की टीमें भी आ चुकी हैं, वो भी कर रही हैं। इसी तरह जो सानिया निश्तर साहिबा की जो कमेटी बनी है वो भी लगी हुई है। तो एक तरफ हम वो मुतासरीन जो घरों को नहीं लौटे हैं उनको मेडिसन, खुराक ये पहुंचाने का काम भी साथ साथ हो रहा है और साथ रिहेबिलिटेशन के लिए भी प्लानिंग हो गई है। मेरे ख्याल से 2, 3, 4 दिन से मुसलसल वज़ीर आला महमूद खान के ज़ेर सदा इजलास भी हो रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़्यादा नुकसानात हुए हैं उन तक फौरी तौर पे उनकी बहाली, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो प्लानिंग होती है वो जारी है। और ज़ाहिर है देखें, एक घर भी अगर आप बनाएं तो वो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मुझे 10 दिन में बना के दे दें, एक टाइम लगता है। और ये तो बहुत बड़ी डैमेजेस हुई हैं, ये 100 खरब से ज़्यादा है, मतलब 100 अरब से कहीं ज़्यादा है। इसमें कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, इसमें फसलें भी हैं, क्रॉप्स डैमेजेस हुई हैं, जो कल्टिवेटेड लैंड है वो बह चुकी हैं, पुल बह चुके हैं। तो जाहिर है उस पर टाइम लगेगा। NDMA भी उसमें आ गया, अब वो भी कुछ काम वो करेंगे, कुछ सूबाई हुकूमत करेगी, कुछ हम जो डोनर्स हैं हमारे वो भी आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से भी हम तावन हासिल कर रहे हैं, UNO से भी तावन हासिल कर रहे हैं। जिस तरह मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं और जो हामला ख़वातीन हैं उनकी देखभाल के लिए काफ़ी कैंप्स लगा चुके हैं। तो ये एक मुश्किल मरहला है और एक छोटी सी हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि हमने फैसला किया है कि हमारे पास जितने भी वसाइल हैं वो सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ हैं, तो इसलिए हमें कोई टेंशन भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है। और वज़ीर आला महमूद खान ने कहा है कि हम और कोई काम नहीं करेंगे, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है सबसे पहले हम उसको बहाल करेंगे। यानी शौकत साहब, मुश्किलात और नुकसानात का अजाला करने के लिए वक्त दरकार है। सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सैलाब के बायस घर गंवाने वाले नौशहरा की खैमा बस्ती में रहने पर मजबूर हैं। मुतासरीन शदीद गर्मी में खैमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ बाज़ घर मुकम्मल तबाह हुए, वहीं कुछ घर अब रहने के काबिल नहीं रहे। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि घरों की तामीर के लिए इमदाद फराहम की जाए। ये वो लोग हैं जो हालिया सैलाब में अपना सब कुछ गंवा बैठे। नौशहरा में कायम खेमा बस्ती में रिहाइश पजीर अफराद को जहाँ बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत का सामना है, वहाँ सैलाब में गर्म मलियामेट होने के बायस वो ताहाल शदीद गर्मी के आलम में खेमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। सिर्फ यही नहीं, उनसे रोज़गार भी छीन गया है। हमारा घर पानी में डूबा हुआ है, हमारा सब कुछ तबाह हो गया। हम इधर तांबू में बैठे हुए हैं, 20 दिन हो गए, हमारा सब कुछ तबाह हो गया, पानी सब कुछ ले गए। इन मुतासिरीन में बास के घर तो मुकम्मल तबाह हुए हैं, जबकि कुछ के घर खस्ताहाली के बायस रहने के काबिल नहीं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। सैलाब ज़दगान का कहना है कि जब तक हुकूमत उनके साथ उन्हें घरों की तामीर व मुरम्मत में ताउन नहीं करती, उनकी जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकती। हम लोग इधर बैठ रहे हैं, हमारा बड़ा नुकसान हो गया। हम हुकूमत से दरख्वास्त भी करेगा कि हमारे साथ ताउन भी करेगा, हमारा पुश्ता हालात देखेंगे, हमारा कारोबार खराब हो गया। मुतासिरीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें भी फौरी तौर पर घरों की तामीर के लिए इमदाद फराहम की जाए, ताकि वो भी अपने घरों को लौट कर एक बार फिर से एक नई जिंदगी का आगाज कर सके। नासिर खान, 92 न्यूज़, नौशहरा। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में 20,000 ख़वातीन में ज़चगी मुतवक्के है। 34,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन हैज़े और 29,000 से ज़ायद जल्दी इमराज में मुब्तला है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से वकास पुनेरी।
खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में कई अमराज फूट पड़े। हैजे से 34,376 अफराद मुतासिर हुए। हैजे के सबसे ज्यादा केसेस चारसद्दा में रिपोर्ट हुए। सांस के 32,156 मरीजों में डेरा इस्माइल खान सैर फहरिस्त है, जहाँ 9,014 मरीज मौजूद हैं। इन अजला के 902 मरीजों में टाइफाइड की तशखीस हुई। सवात में सबसे ज्यादा 371 मरीज टाइफाइड का शिकार हुए। डायरिया, लूज मोशन, वोमिटिंग और जितने भी डिहाइड्रेटेड पेशेंट थे, कुछ पेशेंट्स हमने यहीं पे रेस्क्यू करके यहीं पे हम उनको ट्रीटमेंट दे दी। मलेरिया और डेंगू से 7 अजला में बिल तरतीब 2,416 और 715 अफराद मुतासिर हुए। DI खान में मलेरिया से सबसे ज्यादा 1,004 अफराद मुतासिर हुए, जबकि डेंगू से सबसे ज्यादा नौशहरा में 365 अफराद बीमार पड़ गए। इन अजला में 72 अफराद को सांप ने डस लिया। सांप डसने के सबसे ज्यादा 48 केसेस सवात में मंजर आम पर आए। जल्दी अमराज से मुतासिर होने वालों की तादाद 29,700 है, जिसमें 11,500 मरीजों के साथ सर फहरिस्त है। हेल्थ में उनको ज़्यादातर जो स्किन एलर्जीज होते हैं, क्योंकि वो पानी एक जगह पर जमा होता है, गंदा पानी होता है, तो वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान, मुख्तलिफ एज के लोग होते हैं, उनसे मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं। सैलाब ज़दा अजला में 25,000 खवातीन हामिला हैं, जिनमें 20,000 की ज़चगी अनकरीब मुतवक्के हैं। अब तक इनमें 15,000 खवातीन की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिनके लिए 300 मेडिकल कैंप्स बनाए गए हैं। वकास बुनीरी, 92 न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, टांक में एक सैलाब मुतासरा बाजुर्ग खातून ऐसे भी हैं जिसका घर भी मुकम्मल तबाह हो गया। इस बुजुर्ग खातून के मुश्किलात जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे इरफान लगारी से। इरफान लगारी, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टांक में भी बहुत सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही की है। यहाँ पर गरीब लोग जो हैं इस सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांक के नवाई गांव गरा बलोच में, जहाँ पर एक ऐसी बेवा खातून है जिसका एक बेटा है जो रोज़मर्रा की दिहाड़ी करता है, उसके सिवा इसका कोई कमाने वाला नहीं है। पिछले 4 साल से बिस्तर मर्ग पर पड़ी हैं। सैलाब की वजह से इसका मुकम्मल घर तबाह हो गया है और ये खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं। जब हमने इस बेवा खातून से बात की तो इनका कहना है कि मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं है, मेरा एक बेटा है। जब मैं दवाइयाँ लेती हूँ तो मेरा खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर खाने के लिए कुछ लेते हैं तो दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते। मैं हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ कि मेरे साथ इमदाद की जाए ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी हम पाल सकें और मेरा इलाज भी हो सके। जी। मैनचेस्टर में PTI नॉर्थ वेस्ट की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मुमताज़ जावेद चट्ठा ने बतौर मैनचेस्टर सिटी वाइस प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन वसूल किया। तकरीब में बड़ी तादाद में PTI अहदेदारान कारकुनों ने शिरकत की। सदर PTI स्कॉटलैंड राना आनस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब के हवाले राजा वाजिद की रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में PTI नॉर्थ वेस्ट की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुमताज़ जावेद चट्ठा को मैनचेस्टर सिटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब करने का नोटिफिकेशन दिया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में PTI ओहदेदारान और कारकुनान शरीक हुए। सदर PTI स्कॉटलैंड राना अंस ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। दिल को हम मत लाए अनवार बनाने हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसफ भट्ट, सदर स्कॉटलैंड राना अंस, साबिक सदर PTI बरतानिया राना अब्दुल सत्तार, जनरल सेक्रेटरी चौधरी बिलाल गुज्जर, चौधरी मसरत अली, नायब सदर इखलाक वड़ाइच और दीगर का कहना था कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में मुंतखब होने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन को आगे लेकर चलेंगे। उनका मजीद कहना था कि हम नॉर्थ वेस्ट के तमाम टाउन्स में जाकर तंजीम साजी भी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट, राना अंस, राना अब्दुल सत्तार और दूसरे लोगों का कहना था कि हम मुमताज जावेद चट्ठा को मैनचेस्टर सिटी का नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी इस नई जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएंगे। मुमताज जावेद चट्ठा साहब जो PTI के हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने PTI नॉर्थ वेस्ट की पूरी टीम के आज़ाद में आज एक शैये का अहतमाम किया। हम उनको इंतहाई मशकूर भी हैं और साथ हम PTI नॉर्थ वेस्ट की तरफ से उसको एज ए वाइस प्रेसिडेंट मैनचेस्टर सिटी का नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं। मुबारकबाद देता हूँ आसिफ भट्ट साहब को, तो इतने
ज़बरदस्त मार्जिन से उन्होंने अपने रीजन को जीता है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे यहाँ ये देख के हुई है कि आज वो नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। बेसिकली पार्टी में जब हम आते हैं, हमने पार्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है। आसफ भट्ट साहब और उनकी टीम ने नॉर्थ वेस्ट में जवेद चट्ठा साहब को अपॉइंट किया है ग्रेटर मैनचेस्टर के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और नॉर्थ वेस्ट की जितनी टीम है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। रेगुलर मीटिंग्स इस तरह की होती हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है नए आइडियाज़ डिस्कस करने के लिए, ताकि वो हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपने आने वाले वक्तों के लिए। और रिगार्डिंग रिफॉर्म विद इन PTI UK एंड विद इन पाकिस्तान PTI UK, तो ये बहुत अच्छी गैदरिंग्स हैं। इस तरह के इवेंट्स इस तरह के होने चाहिए ताकि हम लोगों को मौका मिले कि हमने इनको अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। पूरी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, खान साहब का विजन लेकर आगे चलेंगे और इंशाल्लाह नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक एक टाउन के अंदर हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। जी, आज यहाँ पे हम मैनचेस्टर में इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो मुमताज़ चट्ठा साहब है, उन्होंने हमारी नॉर्थ वेस्ट की विनर टीम को शाइया दिया है और आज उनको हमने नोटिफिकेशन भी दिया है उनके वाइस प्रेसिडेंट का मैनचेस्टर का। PTI की टीम नॉर्थ की जो इलेक्ट हुई है उनको मुबारकबाद देता हूँ और इमरान खान के विजन के साथ हम लोग खड़े हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आज चौधरी मुमताज़ जवेद चट्ठा साहब ने जो साबिक स्टॉक बोर्ड के सदर थे, उनको हम आज नॉमिनेट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट मैनचेस्टर सिटी के लिए। उनको मुबारकबाद देते हैं और तमाम दोस्तों को उन्होंने इकट्ठा किया और बहुत अच्छी खुशगवार माहौल में एक महफिल सजाई है। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैनचेस्टर सिटी के जो वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए हैं मुमताज़ जवेद चट्ठा साहब, उन्होंने हमारे आज रॉयल मैनचेस्टर में एजाज़ में इशाया दिया है। और हमारे जो आज स्कॉटलैंड से मेहमान आए हैं, हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं अनस साहब। नायब सदर हैं मुमताज़ जवेद चट्ठा साहब, उनकी तरफ से PTI नॉर्थ वेस्ट की इलेक्टेड टीम को यहाँ पे दावत दी गई है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने हमें वेल विश किया है कि आने वाले पूरे साल के अंदर हम इमरान खान के विजन के मुताबिक अपनी पार्टी की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। इस मौके पर मुमताज़ जवेद चट्ठा ने मैनचेस्टर सिटी का नायब सदर मुंतखब होने पर PTI नॉर्थ वेस्ट का शुक्रिया अदा किया। मैं नॉर्थ वेस्ट की टीम का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे आज फिर दोबारा सेलेक्ट किया है वाइस प्रेसिडेंट मैनचेस्टर के लिए। तो मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा कि अपनी टीम के साथ जो भी काम करना है वो इंशाल्लाह कर सकें। तकरीब निजामत के फराइज एडिशनल सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाहिद अनवर ने निभाए। तकरीब में चौधरी रासिफ खान, नसरीन अख्तर, शबाना समी, मुकद्दस मजीद, अली ऑन एडवोकेट, बाबर हुसैन और दीगर ने शिरकत की। आखिर में मुमताज जवेद चट्ठा को मैनचेस्टर सिटी का नायब सदर बनने का सर्टिफिकेट दिया गया। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज, मैनचेस्टर। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 रोज़ा पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के चौथे सीज़न का कामयाब इख्तिताम। प्रॉपर्टी शो में पाकिस्तान में रियल एस्टेट के बड़े बड़े ग्रुप्स ने शिरकत की। पाकिस्तानी ग्रुप्स के स्टॉल पर गैर मामूली रश रहा। कामयाब प्रॉपर्टी शो की खुशी में अपने क्लाइंट्स के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रियल एस्टेट ग्रुप्स के नुमाइंदगान और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तानी रियल एस्टेट ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मशरक़ वस्ता खास तौर पर दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शो की कामयाबी का जश्न मनाते हुए प्रॉपर्टी शो इंतजामिया ने अपने क्लाइंट्स के एजाज में शानदार तकरीब का इनकाद किया। इस मौके पर शुरा ने GFC और दीगर ग्रुप्स के पाकिस्तान में जारी प्रोजेक्ट्स को न सिर्फ सराहा बल्कि इनमें सरमायाकारी करने का भी इरादा जाहिर किया। डायरेक्टर इंडस्ट्रियल मोहम्मद असलम मियां नूर, AK मेमन, मोहम्मद याज मेमन और दीगर का इस मौके पर कहना था कि तमाम बड़े शहरों में हमारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अब आसान इक़्तिसाद पर पाकिस्तान में अपना घर खरीद सकते हैं। तकरीबन क्लाइंट्स के एजाज में रखी गई है जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करने का इरादा जाहिर किया है। प्रॉपर्टी शो अमूमन बहुत कम होते हैं और ख़ास तौर पे जब इंटरनेशनल मार्केट की बात हो तो दुबई के अंदर ये शो है, ये बड़ा पॉपुलर शो हुआ और इसमें जो कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पे बिल्डर्स कम्युनिटी के लोग बड़े बड़े नाम हैं, तो इंटरनेशनली हवाले से बड़ा ज़बरदस्त
खासा एक्सपोजर हुआ। 4-5 ईयर्स पहले के यूनिट्स की बुकिंग है हमारी डिस्कस हुई थी सर, वो बेहतर तरीके से कंप्लीशन हुई और माशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे हैं, इनका नाम है। तो इसमें जहाँ तक स्कैम जो होते हैं, जिस तरीके से स्कीमें तैयार हो रही होती हैं और फाइलें भी मिल रही होती हैं, चीज़ें कंफर्मेशन करके, इनका ये दावा है GFS का कि ये लोग कंफर्म करके प्लॉट को देते हैं और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके देते हैं। जो एग्जीबिशन चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको उसमें। तो इस सक्सेस के बिना पर मैंने कहा कि सब अपने दुबई की कम्युनिटी को जमा करें और गेट टुगेदर करें। तो इस खुशी के मौके पर हमने ये गेट टुगेदर रखी हुई, हमारे सब बिजनेस कम्युनिटी वाले को इनविटेशन दी है। ये हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं और काफ़ी सारे और भी क्लाइंट्स हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनको हमने इनवाइट किया है। लोगों के पास मज़ीद अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ, हमारे साथ जुड़ें और प्रॉफिट गेन करें। हम कंफर्मेशन के बाद प्लॉट एक्वायर करने, सारी चीज़ें होने के बाद ही हम सारी कंफर्मेशन, सारी चीज़ें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी हम तमाम जगहों पर एक्सपेंड कर चुके हैं। उस वजह से हमें बहुत अच्छा सा रिस्पांस मिल रहा है। शुरा की जानब से पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के शानदार इंतजामात की बेहद तारीफ की गई। उनका कहना था कि इस किस्म के इवेंट से पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुलते हैं और दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तान रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी करने के लिए एक महफूज तरीन मुल्क है। आखिर में तकरीब के मेजबान अदारे की जानब से स्टाफ और क्लाइंट्स में तोहफे भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। मेमन वेलफेयर सोसाइटी मासा के ज़ेर तमाम जद्दा में 5वीं अब्दुलसत्तार ईदी अवार्ड तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मासा बोर्ड मेंबरान, मीडिया अहदेदारान, सियासी नुमाइंदगान, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ तबक़ाए है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। शानदार फलाही खदमात पर मोहम्मद इस्माइल मेंढा को अब्दुलसत्तार ईदी अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात अदील राज की रिपोर्ट में। मौलाना अब्दुल सत्तार के इस कॉल के पेश नज़र उनकी बेलौस और नाकाबिले फरामोश खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए मेमन वेलफेयर सोसाइटी मासा के ज़ेर एहतमाम जद्दा में 5वीं अब्दुल सत्तार ईदी अवार्ड की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मासा बोर्ड के मेम्बरान, मीडिया ओहदेदारान, सियासी नुमाइंदगान, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ तबका आए फ़िक्र के लोगों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी इस्लामी ताउन तंजीम के नुमाइंदा रिजवान सईद ने कहा, मौलाना ईदी जैसी मिसाली शख्सियत करोड़ों में एक होती है, जिन्होंने कभी कुछ और नहीं सोचा सिवाय बनी नो इंसान की खिदमत के। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मासा शुएब सिकंदर ने बताया, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी की शख्सियत और इंसानी मदद के जज्बे से मुतासिर होकर उन्होंने फलाही कामों में हिस्सा लेना शुरू किया और आज भी वो मासा के प्लेटफॉर्म से फलाही सरगर्मियों में मसरूफ अमल हैं। सराज अदामजी मासा के जनरल सेक्रेटरी, सादक सौराठिया और मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीगर ओहदेदारान ने मौलाना ईदी को अपने मुनफरिद अंदाज और बेहतरीन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर 9 साल से कम्युनिटी और दीगर तमाम अफराद की बेलौस खिदमत पर इस साल के मुंतखब उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल मेंढा को अब्दुल सत्तार ईदी अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में हाजरीन को जावेद खैरानी की ईदी के हवाले से तैयार करदा एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। अपने इख्तितामी कलामात में नायब सदर वसीम अब्दुल रज़ाक ताई ने तमाम हाजरीन और मेहमान खसूसी का प्रोग्राम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। अदीर रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब।